Hello students, in the last lecture we have started about chapter number 10, that's liquidity preference theory of interest. Now we'll just continue with that. I told you three different motives why people demand money. The first one was known as transaction motive, then the second one was called as precaution motive, and the third one, children, it's known as speculative motive. So people demand money because of three different motives that we have. But the first two motive, children, they were based on what's known as income level. The last motive, speculative, it was based on the rate of interest. Today's lecture, children, we are going to discuss how the rates of interest are determined in the money market and how the rate of interest undergo changes. Okay, so let's begin, children. To begin with, what is interest, children? इंटरेस्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसा है, वो पैसा आपने किसी और को दे दिया है, तो वो पैसा आपने सेक्रीफाइस किया है, तो उसके लिए आपको जो रिवॉर्ड मिलता है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है, चिल्ड्रन. सो whenever we talk about interest, it is nothing, children, but it is the, what is interest? Interest is the price that is being paid for parting with liquidity. What is interest, children? So interest is the price that we pay for parting with liquidity. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश. तो आपके पास कैश है और आप क्या कर रहे हो? अपना कैश किसी और को दे रहे हो, तो उसकी वजह से आपको जो रिवॉर्ड मिलता है, चिल्ड्रन, दैट रिवॉर्ड बेसिकली इज नोन एज लिक्विडिटी बोला जाता है उसको. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट interest as a reward for parting with liquidity. Now we need to understand that rate of interest is basically determined by the demand for money and the supply of money. So बच्चों लोग यहाँ पे मिलता है आपको demand for money और ये क्या है? Supply of money. Both together they are going to determine what is going to be the rate of interest in the market. And see, children, rate of interest is purely something related with money. So it's a monetary phenomenon. Phenomenon is an activity, we can say. Acha. Abhi already, children, we have studied why do people demand money. And most of us are aware that people demand money because of those three different motives. And what are those three different motives, children? उसमें से first वाला जो मैंने आपको already सिखाया हुआ है, it's based on the transaction motive, children. क्या है वो? Transaction. That means people demand money because they require money to carry out day-to-day transactions. अच्छा, उसके अलावा सेकेंड वाला जो मोटिव आएगा, दैट इज नोन एज अ प्रिकॉशनरी मोटिव. दैट मीन्स पीपल डिमांड मनी because they want to take precaution for some unforeseen contingencies that might occur in the future, right? और ये जितने भी तीनों मोटिव्स है, चिल्ड्रन, ये सबका डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इट विल टोटली डिपेंड अपॉन इनकम. दैट मीन्स दे आर इनकम इलास्टिक. इनकम इलास्टिक का मतलब होता है, चिल्ड्रन, दे विल चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम. But the demand for money for transaction and precaution, children, it does not depend upon rate of interest, and that is why we say that they are interest. और उसके साथ में बच्चों एक वर्ड आप अटैच कर सकते हो, इन इलास्टिक. दैट मीन्स दे डू नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, बट एट द सेम टाइम, चिल्ड्रन, हमने जो तीसरा वाला मोटिव पढ़ा था, द थर्ड मोटिव, व्हाट वाज दैट, चिल्ड्रन? स्पेक्युलेटिव मोटिव. इट इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब स्पेक्यूलेशन के लिए हम लोग कितना पैसा होल्ड करते हैं अपने पास, इट विल डिपेंड, चिल्ड्रन, टोटली अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, सो वी डिनोट डिमांड फॉर मनी, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसको हम लोग एम डी करके बोलते हैं, एंड सप्लाई ऑफ मनी विल बी डिनोटेड एज एम एस. सो एम डी का मतलब क्या होगा, चिल्ड्रन? डिमांड फॉर मनी. एम एस का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी. अच्छा, सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोनों का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. एक साइड में डिमांड फॉर मनी, ऑन द अदर साइड, चिल्ड्रन, वी हैव गॉट द सप्लाई ऑफ मनी. अच्छा, अभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, चिल्ड्रन? तो वी कैन स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ सम गिवन diagrams here. I'll tell you how this diagram is exactly derived, children. ये diagram derive कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग पहले.
अच्छा, to derive this diagram children, as usual we require what? The x axis and the y axis children. Okay, so suppose like we have the x y axis here. Acha, along with that children we come across the y axis. क्या आएगा यहाँ पे? Y axis. अच्छा, अभी x axis और y axis में what we need to understand children is this कि x और y axis का जो intersection आता है, ठीक है? I'm preparing this curve here children. So we have come across the x and the y axis. As usual children, यहाँ पे x axis पे क्या डिनोट करना है? तो x axis will denote what is known as money supply. क्या डिनोट करेंगे? Money supply. So children, when we denote the supply of money, अगर हम लोग यहाँ पे money supply को denote करें, तो can we write it like this children? That is MS. That is supply of money. अच्छा, at the same time we will also require to show your children the demand for money. So M और उसके साथ में हम लोग लिख रहे हैं D. अच्छा, अच्छे से समझ के लेना आपको. If you have any doubts you can get it cleared, children. अच्छा, so I suppose this is the x axis और फिर उसके साथ में y axis पे देखते क्या बताने हम लोग y axis पे. ये देखो यहाँ पे y axis के लिए suppose if we just show an arrow here, ये रहेगा आपका y axis. Y axis पे we are going to represent nothing but children the rate of interest. क्या बताना है आपको? Rate of interest. So children, if you're talking about the rate of interest on y-axis and along with that children will be showing the demand for money and supply for money on x-axis. अच्छा, अभी हम लोग क्या करें यहाँ पे? We will first of all represent the supply of money. क्या बताएंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे? Supply of money. Now as everyone knows, supply of money is entirely determined by Reserve Bank of India. अच्छा, तो बच्चों लोग ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वी कैन जस्ट मेंशन इट एज व्हाट? एम एस. क्या लिखना है आपको यहाँ पे? एम एस. एम एस का मतलब क्या होगा? इट्स अ सप्लाई ऑफ मनी. अच्छा, why is it straight children? Because supply of money is perfectly inelastic. It is determined by the Reserve Bank of India. We cannot change the supply of money. Achha, now the question arises, what exactly is the type of curve that we get for demand for money? So demand for money वाला curve अगर आपको derive करना है तो you can start it from here like this, और आप इसको downward slope लेते हुए you can make it parallel to x axis. अच्छा, इस कर्व का नाम होगा बच्चों लोग MD, that is demand for money. अच्छा, अभी वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिमांड फॉर मनी चिल्ड्रन इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब क्या होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो डिमांड फॉर मनी कम होता है. अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा हो जाता है. अच्छा, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ते जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नेवर फॉल्स बिलो 2% according to Keynes, जो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. अच्छा, now what can you see children in the on the screen? You can see the supply of money and the demand for money. Now where does market achieve equilibrium? तो जहां पे बच्चों लोग डिमांड और सप्लाई क्या होगा? इक्वल होगा. डिमांड एंड सप्लाई आर गोइंग टू बिकम इक्वल. ये वाले पॉइंट पे you will realize that this is the market equilibrium. ये जो डॉट मैंने दिखा है इसको आप इक्विलिब्रियम बोलोगे. That is demand for money will be equal to supply of money. अच्छा, तो at this particular point this is the market equilibrium. तो आप यहाँ से अगर एक straight line draw करोगे तो you will be deriving what is the rate of interest here children. So ये आ गया आपका rate of interest. तो कितना है बच्चों मार्केट में rate of interest? It can be denoted with R. So rate of interest children is O से लेकर R तक.
और अगर आपको डिमांड फॉर मनी चाहिए तो एक काम करो, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, व्हाट यू कैन डू इज दिस, ये लिखा मैंने यहाँ पे, अगर एम करके डिनोट करोगे आप इधर, तो ओ से लेकर एम क्या है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, एंड ओ से लेकर आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चिल्ड्रन वी कैन से। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से बेस पे तैयार किया हमने, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा, नाउ यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है लेकिन चलो ये वाले डायग्राम में, कौन सा पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट टी। सो टी पॉइंट इज दैट पॉइंट चिल्ड्रन जहां पे आपका डिमांड फॉर मनी कर्व क्या हो जाता है, एग्जैक्टली बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि उसके नीचे डिमांड फॉर मनी कभी जाता नहीं है। ओके, तो सपोज चिल्ड्रन हियर इफ आई जस्ट टेल यू हाउ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन, तो आपने समझ लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से डिटरमाइन होता है। नाउ व्हाट कैन वी डू हियर चिल्ड्रन, कि suppose if I say like this, the graph below explains the determination of rate of interest by demand for money and the supply of money। मतलब क्या हो गया यहाँ पे बच्चों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय करने में किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो आई वुड एक्चुअली से लाइक दिस, द ग्राफ एक्सप्लेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी के साथ में सप्लाई ऑफ मनी मिलके डिसाइड करते हैं कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या होगा। ओके, देन चिल्ड्रन द एमडी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अच्छा, एंड फ्रॉम पॉइंट टी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो आपका एम डी कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप करेगा पॉइंट टी तक, और टी के आगे इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, मतलब क्या हो गया, पॉइंट टी तक रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्स। तो आप देख सकते हो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसका मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वैसे वैसे डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, लेकिन पॉइंट टी के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो भी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा नहीं। सो डिमांड फॉर मनी बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, so from T onwards the MD curve is horizontal, implying that demand for money is perfectly elastic। अच्छा, क्योंकि केन्स ने क्या ऑब्जर्व किया था, अकॉर्डिंग टू केन्स एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला, एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश मनी विद देम रादर देन लेंडिंग और परचेसिंग बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी। मतलब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम रहेगा तो अपने पास पैसा रखने से अच्छा है कि हम लोग मार्केट मतलब वी कैन एक्चुअली होल्ड दैट मनी ना। क्या बोला देखो, विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट people prefer to hold cash with them rather than lending or purchasing bonds or securities। So the graph tries to explain to our children the rate of interest by the intersection for demand for money and supply of money। अच्छा, अभी डायग्राम की अगर आप बात करोगे तो डिमांड फॉर मनी शोन बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, और पॉइंट ई को तो आप क्या करके जानते हो, पॉइंट ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर इज डिटरमाइंड चिल्ड्रन। ठीक है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया चिल्ड्रन कि लाइक एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली वी कैन बी एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम, लेकिन अगर आपको पूछा गया है कि लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते कैसे, तो उसके लिए फिर हम लोगों को आगे का आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो इम्पैक्ट of changes in demand for money and supply of money on the rates of interest। Okay, so here we go children, let's see how that rate of interest is affected by demand for money and supply of money। Acha, suppose determination of rate of interest। Acha, see, an increase in demand for money, क्या बोला है, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, मतलब चलो अगर डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा, अगर डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा M1 से लेकर M2, और एट टाइम्स बोथ वुड शिफ्ट द MD कर्व अपवर्ड्स टू द राइट लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, हाउ डज दैट एग्जैक्टली हैपन चिल्ड्रन, तो आई विल एक्सप्लेन टू यू द डायग्राम, you'll directly understand it। Okay, so suppose children here in this particular diagram, we'll begin by constructing the diagram। So
हाउ डू वी गो अराउंड चिल्ड्रन? तो ये है आपका y एक्सिस, यहाँ से आपने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है किधर तक, O तक. So O y axis ready हो गया children. In a similar way, what we are going to do is this. We will derive the x axis. तो चलो for deriving x axis, what we have to do is this. ये आपने यहाँ से start किया है line और ये खींचा point O तक. तो आपका x axis भी तैयार हो गया. Yes. So children, in the diagram we have got x axis. क्या मिला है आपको? X axis and the y axis. Okay, here. Children, this is the x axis and this is the y axis. x axis पे आपने क्या डिनोट किया हुआ है children? x axis पे सप्लाई ऑफ मनी. तो ठीक है, ये दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी. इन अ सिमिलर वे children, on the y axis we are representing what? Children, we are representing the rate of interest, we can say. क्या बताना है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो सपोज इसको भी अगर हम लोग हाईलाइट करके बताते हैं, तो this children is the rate of interest. Okay, now तो चलो सबसे पहले आपको बनाना होता है आरबीआई का कर्व. तो आरबीआई के कर्व के लिए आप स्टार्ट करोगे अपना कर्व पॉइंट एम एस से और उसको एक्सटेंड करोगे क्यू तक. ये आ गया आपको चलो आपका नया कर्व. ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मनी सप्लाई होता है और ये कभी हम लोग नहीं बदल सकते, तो इसलिए उसको आप उसको परफेक्टली इनइलास्टिक बताओगे. अच्छा, फिर जो हमारा ओरिजिनल डिमांड फॉर मनी का कर्व है, द ओरिजिनल डिमांड फॉर मनी का कर्व, तो उसको आप कैसे बना सकते हो? ये आपने स्टार्ट किया इधर से एंड यू कैन जस्ट पुल इट डाउन चिल्ड्रन और आप एक कर्व बना सकते हो. ये जाएगा कर्व एम डी तक. कहां तक जाता है? एम डी तक. ये होता है चलो डिमांड फॉर मनी. अभी ओरिजिनली इफ यू जस्ट ऑब्जर्व चिल्ड्रन, तो आपको दिखेगा कि पॉइंट ई पे, कहां पे? पॉइंट ई पे क्या क्या इंटरसेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन? एम डी कर्व एंड एम एस कर्व. एम एस कर्व है दैट इज सप्लाई ऑफ मनी और एम डी कर्व डिमांड फॉर मनी. तो चिल्ड्रन यू ऑब्जर्व दैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट both are intersecting each other, so this is called as the equilibrium point. तो अगर आप कुछ लोग यहाँ पे इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू बी योर exactly what is called as the rate of interest जो मार्केट में चलता रहेगा. Okay, so we have got a straight line here children, that is nothing but the rate of interest. So can I just observe here? Yes, तो ये आपने लाइन खींचा है आर तक, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, तो अगर आपको कोई पूछता हो चलो लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली कितना है, तो कैन यू सी द कर्सर चिल्ड्रन? यस, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी इज हाउ मच? क्यू. अभी हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि लाइक बाय चांस गवर्नमेंट या फिर किसी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से मार्केट में अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ गया, तो डिमांड फॉर मनी बढ़ने की वजह से बच्चों एम डी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. कहां पे शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड शिफ्ट. तो ये जो आप डॉटेड लाइन देख सकते हो चिल्ड्रन, यस, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट. और आप एक कर्व यहाँ पे नीचे खींचोगे ऐसे, तो एम डी वन, ये नया कर्व तैयार हो गया इधर. अच्छा, अभी नया डिमांड कर्व पुराने सप्लाई कर्व को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है. कौन से पॉइंट पे? ई. और इसीलिए चिल्ड्रन अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको मार्केट का नया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. क्या मिलेगा? नया रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो चिल्ड्रन हियर इज द कर्व दैट वी ड्रॉ. ठीक है, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? ओ से लेकर आर तक. नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिख रहा है आपको? ओ से लेकर आर वन तक. मतलब तो आपने देखा कि लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया. What is the logic children? Why is there a rise in the rate of interest? Because there is rise in the demand for money. So इसमें से आपको एक कंक्लूजन याद रखना है कि सप्लाई ऑफ मनी को अगर हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, क्या करें हम लोग? सप्लाई ऑफ मनी को अगर आप कांस्टेंट अज्यूम करोगे, तो लेट अस अज्यूम चिल्ड्रन, you can just observe here. So can we say like this? Money supply, for some reason we are going to assume that it is going to remain constant because we cannot determine the supply of money.
और ऐसे सिचुएशन में बाय चांस क्या हो गया चिल्ड्रन, डिमांड फॉर मनी क्या हो रहा है मार्केट में, इंक्रीज हो रहा है, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यू विल ऑब्जर्व दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा मार्केट का वो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। आपने देखा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है। अच्छा, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है चिल्ड्रन, दे हैव गिवन इन डिटेल, यू कैन रीड इट आउट समटाइम्स माइट बी। अच्छा क्या लिखा है देखो, इन द above graph the initial rate of interest is how much, OR, इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, OR है। अच्छा कैसे पता चलता है OR है, इट्स इंटरसेक्शन ऑफ मनी सप्लाई और MD कर्व्स, मतलब डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो गए, वहां पे हम लोग बोलते हैं कि इट्स कॉल्ड एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा अभी जैसे ही आपको दिखता है कि डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होता है तो MD कर्व शिफ्ट होता है अपवर्ड, तो नया वाला डिमांड फॉर मनी कर्व कौन सा आएगा, MD1, और उसकी वजह से आपको एक नया इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, और वो नया इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है चिल्ड्रन, E1, so rate of interest is going to rise to R1, right? अच्छा वैसे बच्चों अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके भी दिखा सकते हो क्या, yes obviously children we can lower the rate of interest, you can just see here, I'm just showing you for demo purpose। अगर आपका डिमांड फॉर मनी कम होगा तो आपका कर्व बच्चों ऐसे डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, राइट? फिर इसको आप नाम क्या दे सकते हो, MD2। अच्छा तो नया वाला इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा चिल्ड्रन, इट विल बी हियर, राइट? और यहां से चलो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको मार्केट का नया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो R2 होगा, मतलब मार्केट में डिमांड फॉर मनी कम होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो चुका है, कम हो गया, और डिमांड फॉर मनी जब बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ता है। दैट्स व्हाट यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम, ओके? यस चिल्ड्रन, ये वाला डायग्राम था अबाउट चेंजेस इन डिमांड फॉर मनी। In a similar way, children, there could be some changes that take place in the supply of money. तो supply of money अगर change होता है तो हम लोग डायग्राम को किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं देख लेते हैं। So suppose if we go to analyze a diagram here, children, तो आप देखो कि मैं पहले डायग्राम आपको एक बना के बता रहा हूँ। This is y axis and this is suppose x axis, ठीक है? ये आपने एरोस बनाए x एक्सिस के लिए, ये आपका एरो रहेगा फॉर y एक्सिस। फिर आप एक वर्टिकल कर्व पहले ही बना के रखोगे बच्चों लोग, और एक कर्व जैसे कि मैंने आपको बताया दिस नथिंग बट द सप्लाई ऑफ मनी बाय RBI, उसको आप नाम क्या देते हो, मनी सप्लाई। अच्छा फिर आपको क्या करना है, ओरिजिनली आपका डिमांड फॉर मनी कर्व बना के लेना है जो पहले डाउनवर्ड जाएगा और बाद में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस कर्व का नाम होता है बच्चों लोग MD कर्व। अच्छा देन इंटरसेक्शन पॉइंट चिल्ड्रन, एज यू कैन ऑब्जर्व इट हियर, इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कराओगे तो आपको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो चिल्ड्रन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हियर, राइट? दिस शुड बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आप उसको नाम देते हो R। अच्छा डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी कितना है, Q, और ये ओरिजिन होता है O। Now, suppose children, by any chances, if there is a fall in the demand for money, अगर demand for money कम होगा, इसमें से कौन सा कर्व शिफ्ट होगा बताओ, MS कर्व, सप्लाई ऑफ मनी कर्व। तो पहले MS था, अगर आप उसको कम करोगे तो आपका कर्व बच्चों कुछ इस साइड में आएगा ऐसे, यस, और फिर आप इसको नाम क्या देते हो, MS1, राइट? अच्छा और फिर आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ चुका है, कितना हो गया है, R से लेकर R1। सो चिल्ड्रन व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, अच्छा उन्होंने जो डायग्राम दिया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक चिल्ड्रन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अच्छा तो x एक्सिस पे हम लोग क्या बता रहे हैं, सप्लाई ऑफ मनी, y एक्सिस पे आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा तो यहाँ पे चिल्ड्रन ओरिजिनली आपने एक कर्व ड्रॉ किया है, कौन सा कर्व, MS, जो यहाँ पे Q तक आ रहा है, और डिमांड फॉर मनी कौन सा है, MD। इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या हो गया बच्चों, पॉइंट E। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कितना, R।
अच्छा, और जो सप्लाई ऑफ मनी वो कितना है Q। अच्छा, फिर आरबीआई ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया बच्चों लोग, तो आपका एम एस कर्व शिफ्ट होता है राइट की तरफ, एंड इट विल गो टू MS1। और एमडी कर्व को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? एट पॉइंट E1। और जो मार्केट में नया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बच्चों लोग कौन सा होगा? R1। मतलब आपने देखा कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है? कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ा दिया, ज्यादा पैसा मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? Why? Because the quantity of money is actually rising in the market, we can say. So here children, again you are provided with the explanation for the diagram, we can say children. That is with initial money supply OQ. Initial money supply कितना है बच्चों लोग? O से लेकर Q तक। ओके, तो पॉइंट E पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? R। ये देखो OQ। अच्छा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? E। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है R। अच्छा, फिर मनी सप्लाई को हम लोग बढ़ा रहे, कितना करें? O से लेकर Q1। ये देखो O से लेकर Q1 पे जाएगा, O से लेकर Q1। अच्छा, देयर इज अ न्यू मनी सप्लाई, तो MS1 आता है न्यू सप्लाई को, MD को इंटरसेक्ट करेगा कौन से पॉइंट पे? E1। अच्छा, तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है? R1। अच्छा, इन सिमिलर वे चिल्ड्रन, अगर मनी सप्लाई को हम लोग कम कर देते हैं तो MS कर्व शिफ्ट होगा, और नया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो OR के ऊपर होगा। अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंक्लूजन चिल्ड्रन दैट वी हैव? इस डायग्राम का कंक्लूजन क्या है फिर? ओके, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, कैन यू जस्ट ऑब्जर्व दिस स्मॉल इक्वेशन आई कैन टेल यू हियर। सपोज अगर हम लोग यहाँ पे डिमांड फॉर मनी को आज क्या अज्यूम करने वाले चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट द डिमांड फॉर मनी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी दो ऑप्शंस में जाता है। सप्लाई फॉर मनी आइदर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर सप्लाई फॉर मनी बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू फॉल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? फॉल होगा। बट चिल्ड्रन इफ द मनी सप्लाई डिक्रीजेस, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया तो क्या होगा फिर? अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू राइज, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मार्केट में बच्चों लोग रेट जब भी चेंज होते हैं तो इधर इट्स चेंजेस इन द डिमांड फॉर मनी और इट विल बी द चेंजेस इन द supply for money, and both together determine how the rates of interest change in the market. Children, if you get this question in the exam, they might either ask you explain the liquidity preference theory of interest, या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा बच्चों लोग कि explain how rates of exchange are determined, या फिर explain how the rates of interest change in the market. So this is the answer that will be able to attempt. This is a very simple chapter. कभी पूछा तो पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको लिखना पड़ता है वहां पे। Okay, so that's all for today children with chapter number 10. I'll meet you in the next lecture जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी पूरा डायग्राम्स का ही है, तो मैं आपको धीरे धीरे डायग्राम्स डिराइव करके पढ़ाऊंगा। ISLM मॉडल, that is going to be our next topic for discussion. Thank you very much children. Bye everyone. Take care. See you in the next lecture.